Hello everyone, welcome back to the video series for class 10 Information Technology, and in this video we are going to discuss about the fourth and the last session of the second unit, that is Electronic Spreadsheet Advanced Level. So in this video we are going to discuss about the following topics: how we can create our macro, how we can run macro, how we can pass arguments to a macro, how we can pass the arguments area values, how we can use macros as built-in function, and how we can sort the column using macros. So we are going to discuss the following topics in today's video. So before proceeding the video, uh, if you have not subscribed this video till now, subscribe my channel till now, please subscribe my channel and don't forget to like it and share it. So let us start the today's topic. So first of all, we are going to discuss what is the meaning of macro. जब हम बात करते हैं कि मैक्रो का मतलब क्या होता है, तो मैक्रो एक ऐसी फीचर है स्प्रेडशीट की जो हमें अलाउ करता है कि हम अपने टास्क को काफ़ी सिंपल कर सके। अगर एक ही टास्क को हम रिपीटेडली यूज़ कर रहे हैं बार बार, तो मैक्रो इस काम को हमें आसान बनाता है। सो वी कैन से दैट मैक्रोज आर स्पेशली यूजफुल टू रिपीट अ टास्क द सेम वे ओवर एंड ओवर अगेन। अब हम मैक्रो कैसे यूज कर सकते हैं, मैक्रो कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस टॉपिक. Suppose we are having one spreadsheet or open office calc is here. You can see here we are having the cells of fourth zone. Okay, twice in the first quarter we are having cells this much, and this is the second quarter where we are having the डेटा लाइक दिस वन. तो यहाँ पे दो शीट है हमारे पास. एक शीट में हमारे फर्स्ट क्वार्टर के सेल्स हैं. नॉर्थ जोन में कितने सेल हुए, ईस्ट जोन में कितने हुए, वेस्ट जोन में कितने हुए. ओके सॉरी, लेट इट बी साउथ. ओके, सिमिलरली यहाँ पे सेकेंड क्वार्टर में हमारे सेल्स कितने हुए. अब हमें क्या करना है कि हम यहाँ पे क्रिएट करना सीखेंगे कि मैक्रो हम कैसे क्रिएट करते हैं. अगर हमें टोटल कितने सेल हुए फर्स्ट क्वार्टर में, इसके लिए अगर हम एक मैक्रो रिकॉर्ड करना चाहेंगे तो वो हम कैसे करेंगे, लेट्स सी. सो फॉर दैट we have to go to the option tools option. Okay, so students, you have to remember that from where we are getting our options. So macros option is available under the tools menu. So you have to go to the tools menu, click on macros and start recording macro. So after clicking on record macro, whatever things you will do, that will be become part of macro. मैक्रो रिकॉर्ड करने के लिए आप जैसे ही शुरू करोगे, उसके बाद जो भी सारी चीज़ें आप करोगे, दैट विल बी पार्ट ऑफ योर मैक्रो. ठीक है, तो आई एम क्लिकिंग ऑन रिकॉर्ड मैक्रो ऑप्शन और यहाँ पे हमें चाहिए इन सब का टोटल. तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ इक्वल टू. अब किनका टोटल चाहिए आप सेल रेफरेंस लिख लो. ये दिस वन इज B2, दिस वन इज B3, दिस वन इज B4 एंड दिस वन इज B5. तो सेल रेफरेंस आप पता कर लो. उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे B2 प्लस B3 plus B4 plus B5 and I will press enter. आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हमें अमाउंट मिल चुका है. हमने अपना मैक्रो कैलकुलेट कर लिया. अब हम जो मैक्रो रिकॉर्डिंग हमने स्टार्ट की थी, वी विल स्टॉप दैट रिकॉर्डिंग. सो स्टॉप दैट रिकॉर्डिंग. नाउ you will have a dialog box like this one. Okay, so you can see the name of my calc sheet is macros. Okay, you just click on that one and go to new library. We can create our own library. So we will go to new library and you can give any name to your library. Let it be library 2. I'm pressing OK. Okay, because library 1 was already created earlier. You may create your own library. If it is already there, you may create your macro on प्रीवियसली क्रिएटेड लाइब्रेरी एज वेल. जो पहले से लाइब्रेरी बने हुए हैं आप उसके अंदर भी अपना मैक्रो क्रिएट कर सकते हो, बट मुझे आप लोगों को दिखाना था, तो फर्स्ट टाइम अगर हम क्रिएट करें, हमने अपना एक लाइब्रेरी बना लिया है. लाइब्रेरी क्रिएट करते ही डियर स्टूडेंट, यू विल फाइंड automatically created module. Okay, so under your created library you will have your module and just give
a name to your macro. Give any name. Since this is creating the total, I am giving the name as total. Okay, so you may give in capital or small, doesn't matter. So I am giving the name total and just save it. Okay, so we have created a macro which will find the total of B2, B3, B4 and 5. Now what we will do, we are having another sheet in which we are having the cells of different zone in the second quarter. Now instead of typing the whole formula, we will run our macro here. So how we can run our macro? We have created our macro, we have recorded our macro. Now next task is how we can run our macro. So just click here where we want our result and go to again tools option, macros option, and now you have to choose run macro. Now when you will choose on run macro, you have to choose that which macro you want to execute. So we have to go to here and under library 2 module 1, okay, select here. Here this one is the macro that we have created. So select this one and run this one. You can see the values we are getting by doing the same calculation that we have done in the first sheet. ओके, तो एक बार हमने मैक्रो रिकॉर्ड कर लिया, उसके बाद हम इसे रन कर रहे हैं और वो हमें एग्जैक्ट आउटपुट दे रहा है. ठीक है, सो दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ मैक्रो. अगर एक ही टास्क हमें बार बार करने होते हैं तो हम मैक्रोस को यूज करते हैं. अब जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे पास वो है, ये हमने पढ़ लिया यूजिंग द मैक्रो रिकॉर्डर. हम मैक्रो रिकॉर्ड कैसे करते हैं, हम एग्जीक्यूट कैसे करते हैं, ये चीज़ें हमने देख ली. ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इज अबाउट फंक्शंस. ठीक है, हम अपने फंक्शन को कैसे लिख सकते हैं, ये तो था मैक्रो. अब हम डिस्कस करेंगे यूजिंग अ मैक्रो एज अ फंक्शन. ओके, now function, when we are talking about functions, so basically functions में कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे रहते हैं जिनको हम अपने ज़रूरत के हिसाब से कहीं भी और कभी भी यूज़ कर सकते हैं. जैसे कैल्क फंक्शन में हमने सम फंक्शन पढ़ा हुआ है. सम फंक्शन ऑटोमेटिकली ही वैल्यू कैलकुलेट करके दे देता है. एवरेज फंक्शन, देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ मैथमेटिकल फंक्शंस जिसको हम सिर्फ कॉल करते हैं और हमारा काम हो जाता है. तो वैसे ही अगर हम चाहेंगे कि हम अपना फंक्शन बनाएं यूजिंग अ मैक्रो, देन हाउ वी कैन डू दैट. So let us see that how we can use a macro as a function. For that, let us go back to the calc. Here we are having a new sheet. So what you have to do, dear students, just go to the option tools and go to option macros, and this time we will go organize macros and choose open office basic. Okay, let us see again what are the steps. We have to go to tools, then macros, then organize macros, and then open office basic. So already we have entered here. Okay, you have to select your sheet name, then the library that you have once created. Under that one you have to go to the option edit. Okay, now you can see that here some codes are already written. आप देख सकते हो बेटे, अभी अभी हमने ये टोटल नाम का एक मैक्रो क्रिएट किया था, बट वी हैव नॉट रिटन द कोड, वी हैव जस्ट रिकॉर्डेड द मैक्रो एंड द कोड्स हैव ऑलरेडी बीन एंटर्ड हियर. ओके, so these codes are written in Star Basic. This is the one of the language that are being used here. तो चूंकि that language is not a part of our syllabus, हम उसे डिटेल में नहीं पढ़ने वाले हैं. जो थोड़ी बहुत चीज़ों की ज़रूरत होगी, we are going to discuss only those basic things. तो यहाँ पे जितने भी मैक्रोज हम रिकॉर्ड करते हैं वो यहाँ पे आके सेव हो रहे हैं, उनकी कोडिंग ऑटोमेटिक ही सेव हो रही है. ठीक है, तो अब एक छोटा सा फंक्शन हम खुद का अपना डिफाइन करते हैं. वो फंक्शन क्या करेगा, जैसे उस फंक्शन को हम कॉल करेंगे, यहाँ पे हमारे सपोज एक फंक्शन को हम कॉल करेंगे और उसको कॉल करते ही हमारे सेल में 50 डिस्प्ले होने लगेगा. एंड फॉर दैट पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट वी आर गोइंग टू राइट आवर फंक्शन. ओके, तो हम यहाँ पे एक फंक्शन लिखते हैं.
पहले आपको लिखना होगा फंक्शन एंड देन नेम ऑफ योर फंक्शन। मैंने सपोज फंक्शन का नाम दे दिया है सैम्पल, ओके। और फंक्शन को हम सिंबलाइज करते हैं ये पेयर ऑफ पैरेंथेसिस से। हमारा काम क्या है, जैसे ही हम ये फंक्शन को कॉल करें 50, जिस भी सेल में हम कॉल करें वहां पे 50 डिस्प्ले हो जाना चाहिए, ठीक है, इतना ही चाहिए। अब हम फंक्शन को एंड कर देते हैं, दैट्स इट। हमने अपने फंक्शन को एंड किया। हमने क्या किया, एक फंक्शन जिसका नाम सैम्पल था हमने स्टार्ट किया, ठीक है। अब इस फंक्शन का जो रिजल्ट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, जब ये फंक्शन मैं एग्जीक्यूट करूं तो वो सेल पे 50 डिस्प्ले हो जाना चाहिए। और इसके बाद मैंने फंक्शन को एंड कर दिया। अब हम इसे कर देंगे क्लोज। उसके बाद जैसे आप नॉर्मल फंक्शन कॉल करते हैं वैसे हम फंक्शन को कॉल करेंगे। तो हमारे फंक्शन का नाम था सैम्पल फंक्शन, सो वी विल डू इक्वल टू सैम्पल and this one, and we will print, okay, you can see here 50 has been displayed here. You can call anywhere, ठीक है, आप किसी भी सेल में कॉल करो। यहाँ पे आप देख सकते हो मैं किसी भी सेल में कॉल करूंगी ये हमें 50 देगा, ठीक है। सो इन दिस वे वी कैन राइट आवर ओन मैक्रो एज आवर फंक्शन, ठीक है। So you have to remember the step. When if you will see the reference book, that is I am showing you, it is giving you all the steps which you have to follow for recording your macros or for writing your own functions. That's it only, okay. Nothing new has been written here. You have to go through your steps, okay. और when we are talking about the code, you can see that what codes are written here, ठीक है। आपको कोड्स के बारे में इतना ज़्यादा वरीड नहीं होना है क्योंकि this language is not part of our syllabus, okay. Now another important thing, passing argument to macros. Arguments का मतलब क्या होता है, that we are going to discuss. Argument मतलब वो value जिसके ऊपर हम काम करते हैं। जैसे अभी प्रीवियस एग्जाम्पल में मैंने आप लोगों को बताया बेटे, वी आर गोइंग टू डिस्प्ले हियर सिंपली ए वैल्यू। हमें यहाँ पे किसी भी इनपुट की ज़रूरत नहीं थी। बट सपोज हमारे पास अगर हम चाहें कि हम दो नंबर्स के सम को डिस्प्ले करें, तब हमें इनपुट की ज़रूरत पड़ेगी और इनपुट हमारा क्या होगा, वो दो नंबर होगा, ठीक है। तो अगर हमें कोई इनपुट चाहिए कैलकुलेशन करने के लिए, देन दैट दोज इनपुट्स कैन बी टेकन एज आर्ग्यूमेंट। अब आर्ग्यूमेंट यूज करके हम फंक्शन कैसे लिखते हैं, लेट अस सी दैट वन आल्सो, ओके। So again go to tools option, go to macros option, coming to organize macros and go to OpenOffice Basic, and we are in the same place. सो वी विल गो टू एडिट ऑप्शन। यहाँ पे जितने भी हम मैक्रोज रिकॉर्ड किए, जितने भी हम फंक्शंस बना रहे हैं, आप सारा का सारा देख सकते हो। हमने मैक्रो रिकॉर्ड किया था, इसके आगे लिख रखा है सब। हमने फंक्शन बनाया था, इसके आगे लिख रखा है फंक्शन। अभी मैं और एक फंक्शन आपको बना के दिखाऊंगी जिसका नाम मैं देती हूँ यहाँ पे ऐड, और यहाँ पे मैं दो आर्ग्यूमेंट ले रही हूँ, ए एंड बी। दो आर्ग्यूमेंट हम ले रहे हैं, ठीक है। अब ये जो ऐड है ये क्या दिखाएगा, ये हमें क्या देगा बदले में, a प्लस बी। ये हमें a और b का वैल्यू देगा, ठीक है। बस इतना ही काम है, हम इसे कर देते हैं एंड। वी आर एंडिंग आवर फंक्शन, ओके। तो इस बार हमारे फंक्शन में हमने एक चीज अलग किया है कि वी आर पासिंग द आर्ग्यूमेंट। Now these two are the argument of function because we want these to be input of our function. यहाँ पे हमें दो वैल्यू की एडिशन कैलकुलेट करनी है और जो दो वैल्यू के एडिशन हम कैलकुलेट कर रहे हैं वही दो हमारे आर्ग्यूमेंट कहला रहे हैं। तो नाम है हमारे फंक्शन का ऐड। हम अब इस फंक्शन को कॉल करके देखते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इक्वल टू ऐड। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमने लिखा इक्वल टू ऐड। अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए, दो आर्ग्यूमेंट चाहिए। तो आर्ग्यूमेंट हम अभी यहीं पे पास करवाएंगे। सपोज मैं 10, और अब आपको यहाँ पे कॉमा नहीं डालना, यहाँ पे डालना है आपको सेमीकोलन, 10 और 20, ठीक है। तो ये हमें क्या एग्जीक्यूट करके देगा, ये हमें एग्जीक्यूट करा के देगा दोनों के एडिशन को। जब मैं एंटर प्रेस करूंगी आप देखो ये मुझे 30 ऑटोमेटिकली ही दे रहा, बिकॉज वी हैव रिटन द फंक्शन फॉर दिस पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट। आप कहीं पे भी किसी सेल में आप इस फंक्शन को कॉल कर सकते हो। यहाँ पे अगर मैं ऐड लिखूं, यहाँ पे मैं लिखती हूँ 100 and semicolon 12, then it is going to give me the addition of those two values.
ओके अगर और एक फंक्शन हम लिखना चाहते हैं हम और एक फंक्शन लिख सकते हैं. लेट अस राइट वन मोर फंक्शन टू फाइंड आउट द ग्रेटर अमॉन्ग टू नंबर्स. ठीक है, थोड़ी सी मैं प्रोग्रामिंग की टेक्निक भी यहाँ पे आपको दे दूंगी कि स्टार बेसिक लैंग्वेज में किस तरह से प्रोग्रामिंग करते हैं. ठीक है, तो ये सिंपल सिंपल कोड तो हम लिख सकते हैं, बहुत ज़्यादा हमें डेप्थ में नहीं जाना है, छोटे मोटे कोड्स में आपको एग्जीक्यूट करा के दिखा देती हूँ. तो अभी हम एक कोड लिखते हैं. अगर दो नंबर्स हैं और दोनों में से लार्जेस्ट कौन है इसके लिए हमें कोडिंग करनी है, तो हम क्या करेंगे. सो लेट अस सी स्टूडेंट, अगेन वी विल राइट वन फंक्शन. मैं अभी फंक्शन का नाम दे रही हूँ मैक्स, क्योंकि मैक्सिमम अमॉन्ग टू नंबर्स हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं. तो इसमें भी हमें आर्ग्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी. आर्ग्यूमेंट वही बना सकते हो जिसके ऊपर आप काम करने जा रहे हो. तो यहाँ पे हम दो इनपुट को कंपेयर कर रहे हैं, तो हमारे पास वही दो इनपुट आर्ग्यूमेंट हो गए. अब हम क्या करेंगे, आपको पता है हम यहाँ पे चेक करेंगे कि x इज ग्रेटर देन y, देन मैक्सिमम क्या हो जाना चाहिए, x हो जाना चाहिए. और अगर x y से बड़ा नहीं है तो मैक्सिमम क्या हो जाना चाहिए, y. इतना ही होना चाहिए एंड दैट विल बी द एंड ऑफ आवर फंक्शन. हम दोनों को कंपेयर करेंगे. हमें पता है ये जो रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं वो कंपैरिजन के लिए यूज होते हैं. तो अगर x इज ग्रेटर देन y देन द मैक्सिमम विल बी x एंड दिस इफ दिस इज द फॉल्स, इसका मतलब है जो मैक्सिमम दोनों में कौन सा होगा, y होगा. तो इसको ही हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं. वापस से यहाँ पे हम कंपेयर करते हैं इक्वल टू मैक्स. अगर हमने कंपेयर किया है 50 और सेमीकोलन हम दे रहे हैं और हम यहाँ पे लिख रहे हैं 23, तो ये हमें बताएगा कि दोनों में मैक्सिमम कौन सा है. तो ये देखिए आपको 50 ये बता दिया. ठीक है, अब जो इस तरह से हम छोटे मोटे फंक्शंस लिख सकते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग विच वी हैव टू डिस्कस इज हाउ वी कैन पास आर्ग्यूमेंट एज वैल्यूज. ठीक है, यहाँ पे हम अपने आर्ग्यूमेंट को एज अ वैल्यूज कैसे एक्सेस कर सकते हैं. जैसे अभी हमने ये ऑलरेडी ये फंक्शंस लिख रखे हैं. ठीक है, अब अगर यहाँ पे मैं एक वैल्यू लेती हूँ सपोज 35 और दूसरा वैल्यू मैंने लिया 17 और मैं उसी मैक्स को कंपेयर करना चाहती हूँ. ठीक है, मैक्स फंक्शन ही मैं कॉल करना चाहती हूँ, लेकिन इस बार मैं डायरेक्ट वैल्यू नहीं, मैं डायरेक्ट सेल का रेफरेंस, सेल का वैल्यू मैं लेना चाह रही हूँ. तो आप देख सकते हो कि 35 का सेल रेफरेंस क्या है, A15. तो मैं किसको कंपेयर कर रही हूँ, मैं कंपेयर कर रही हूँ A15 को किसके साथ कंपेयर कर रही हूँ, A16 के साथ. ठीक है, तो ये हमें बताएगा कि कौन सा वैल्यू इन दोनों में ग्रेटर है. आप देख लो 35 ग्रेटर था तो उसने 35 को रिटर्न कर दिया. तो या तो आप डायरेक्ट वैल्यू पास करा सकते हो या तो आप सेल रेफरेंस को भी यूज कर सकते हो. इन दोनों ही तरीकों से हम अपने फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं. Another thing is writing macros that act like built-in functions. तो हम अपने अभी तक हमने देखा कि हम कैसे मैक्रो को रिकॉर्ड कर सकते हैं एज अ नॉर्मल फंक्शन की तरह हम यूज कर सकते हैं. बट ये नॉर्मली जो हमारे पास जो नॉर्मली बिल्ट इन फंक्शंस हैं स्प्रेडशीट के, जैसे सम है, एवरेज है, वो एक्चुअली उनकी तरह बिहेव नहीं होते हैं. ठीक है, क्योंकि अगर आप ये इस शीट को एक बार क्लोज कर दोगे, दोबारा से ओपन करोगे, आपसे पूछा जाएगा वेदर यू वांट टू इनेबल योर मैक्रोज और नॉट. देयर आर सो मेनी डिफरेंट थिंग्स आल्सो. तो एक्चुअली जो अभी हमने पढ़ा ये बिल्ट इन फंक्शंस की तरह पूरी की तरह बिहेव नहीं करते. दे आर नॉट एग्जैक्टली सेम एज बिल्ट इन फंक्शन. बिल्ट इन फंक्शंस मतलब वो फंक्शंस जो पहले से ही हमारे स्प्रेडशीट में बने हुए होते हैं. जितने भी मैथमेटिकल फंक्शंस जो होते हैं, काउंट फंक्शन, सम फंक्शन, एवरेज फंक्शन, जो स्प्रेडशीट के पार्ट होते हैं वो कहलाते हैं बिल्ट इन फंक्शंस. तो जो अभी अभी हमने देखा मैक्रोज हमने बनाया फंक्शन लिस्ट में, वो बिल्कुल रेगुलर बिल्ट इन फंक्शन की तरह बिहेव नहीं करते हैं. तो अगर हमें बिल्कुल बिल्ट इन फंक्शंस की तरह बिहेव करवाना होता है तो उसके लिए हमें उन्हें ऐड इन में लिखना पड़ता है. तो दैट वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस, क्योंकि वो बहुत डिटेल्स में पढ़ना है एंड दैट इज नॉट पार्ट ऑफ आवर सिलेबस. तो हम इतना ही जान सकते हैं कि इफ यू वांट टू राइट फंक्शन दैट शुड बिहेव एज अ रेगुलर फंक्शंस ऑफ स्प्रेडशीट, then that can be written in add-in option. Okay, now another important thing is the last topic is sorting. How we can write macro for sorting value. Okay, so let us see writing macro for sorting value. What we will do, we will take another sheet. Let us, okay,
Okay. And let us see. It is giving some unexpected error. Okay. Let us close this one. We are having another sheet here. What we will do, we will have some values. Take some random values. 12, 1, 45, then 15, then 99. Okay. Now, as per our topic, we have to record a macro for sorting. So what we will do, we will go to the option tools, go to option macros, okay, and we will start recording macro. And we will follow the steps. What we will do, we will select all the values, okay. Here you can see we are having sort option. We will go to the sort option. Values have been already arranged in ascending order. If you want to arrange those values in descending order, you can choose this one. I'm keeping ascending order, okay. So let us stop recording and give you name to macros. I'm giving it arrange, okay, and I'm clicking on save. So you can see that a macro has been created which will allow you to arrange your data in ascending order. Okay, so suppose I'm changing here any value. Suppose I'm changing here any value and we will call another. Suppose मैंने यहाँ पे एक वैल्यू चेंज किया, यहाँ पे और कुछ वैल्यू हम चेंज कर देते हैं, यहाँ पे मैं 2 डाल देती हूँ, ठीक है। और उसके बाद हमें फिर से इनको शॉर्टिंग करना है, असेंडिंग ऑर्डर में इनको लाना है। तो व्हाट वी विल डू, अभी अभी जो हमने मैक्रो बनाया था उसको हम वापस से क्या कर लेंगे, रन कर लेंगे। तो वी विल गो टू अगेन टूल्स ऑप्शन, वी विल गो टू अगेन मैक्रोज ऑप्शन, selecting run macro, and we will search for our macro that was a part of library 2, and here we are having our arrange option. We will go to run and okay, the error is being in the function that we have to remove first, otherwise it is not letting us to do our job. So let us open another file because they have some error in that function. Let me open another file and there I will show you. Okay, we are having some random values. Okay, we will record it. Just select it, go to tools option, go to macros option, record macros. Okay, so we will go to the option short ascending. Data have been arranged in ascending order. We will click on stop recording, and this is the name of our file. You can see here this is the name of our file. So at very first time you have to create your own library. We will go to OK, and here you can give your name macro. I am giving it arrange. OK, and we will click on save. That's it. अब हमें उसी मैक्रो को रन कराना है। हम एक दो वैल्यू चेंज कर देते हैं, यहाँ पे हम डाल देते हैं 101, यहाँ पे हम डाल देते हैं 2, और हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। यहाँ पे हम इस पे मैक्रो अपना एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे वापस से टूल्स में जाएंगे, यहाँ पे मैक्रोस में जाएंगे, रन मैक्रो क्लिक करेंगे और वापस से हम अपने मैक्रो को सर्च करेंगे। हमारी फाइल का नाम अनटाइटल्ड है, यहाँ पे मॉड्यूल हमने सेलेक्ट किया, अरेंज हमने सेलेक्ट किया, हम यहाँ पे रन एग्जीक्यूट करेंगे। आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा डेटा असेंडिंग ऑर्डर में ऑलरेडी अरेंज हो चुका है, ठीक है। सो इन दिस वे वी कैन create our macro for arranging for sorting data. If you want to see that what code has been written, you can see also that one. आपको देखना है कि मैक्रो क्रिएट करने के बाद कौन सी कोडिंग बन के तैयार हुई, तो वो भी आप देख सकते हो। उसको देखने के लिए आपको टूल्स में जाना होगा, मैक्रोस में जाना होगा, ऑर्गेनाइज मैक्रोस, जैसे हम फंक्शन डिफाइन कर रहे थे आपको वहीं पे जाना होगा एंड गो टू एडिट ऑप्शन। एडिट ऑप्शन में जाने के बाद आप देख सकते हो कि ये जो अरेंज मैक्रो था, ये जो हमने बनाया इसके लिए क्या कोड क्रिएट हुआ। सो दिस इज द कोड टू क्रिएट अ मैक्रो फॉर sorting.
Okay, so this was all about the last session of our second unit, that was electronic spreadsheet. So don't forget to like it, share it and subscribe my channel. Thank you for watching.